Good afternoon, everyone. Today is 20th April, and we shall be discussing these four important articles. हर रोज हम 5 articles discuss करते हैं, लेकिन आज 4 करेंगे क्योंकि ये 4 ही थे जो बहुत important लगे. बाकी क्या मैंने बस नंबर बढ़ाने के लिए आज का एक दिन के लिए एक unnecessary, relatively less important article नहीं ऐड किया. If there is something important, तो किसी दिन हम 5 की जगह पे 6 भी कर लेंगे. Anyway, so the articles that we are going to discuss today are River Basin Management Scheme, where we would be strengthening the water governance system in India. Second जो है वो एक commentary है, जो women reservation bill है जब reject हो गया, तो the article argues why women's reservation bill जो है it cannot wait, it has to happen at the earliest. Then जो 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था डेलिमिटेशन रिलेटेड इंक्रीजिंग साइज ऑफ लोकसभा एंड ऑल, वो तो रिजेक्ट हो गया. उसके बारे में थोड़ा और समझेंगे. एंड देयर वी वुड बी स्टडीइंग वन स्कीम. द स्कीम इज रिलीफ स्कीम. इट स्टैंड्स फॉर रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन. So before we start, here are a couple of announcements. ये foundation batch है and this is really helpful for those who are working professional, क्योंकि अपने choice के हिसाब से batch का timing select कर सकते हो. ये online and offline दोनों मोड में available है and इसके further details के लिए contact on the number mentioned on your screen. This is regarding prefit initiative. ये एक MCQ का इकोसिस्टम बनाया है. इस इकोसिस्टम में 15,000 MCQs हैं, out of which 8,000 plus available for free on YouTube discussion. 12,000 जो है they are available on CSAP official app. It's a paid course. और इसका प्राइस जो है वो 7,999 है. बट अगर आप किसी भी तरीके से CSAP के साथ एसोसिएटेड रहे हो तो आप इसके ऊपर फर्दर डिस्काउंट एक्सपेक्ट कर सकते हो. मोर ओवर CSAP का जो फाउंडेशन बैच है वैसा ही एक क्रैश कोर्स बैच होता है. इस क्रैश कोर्स वाले बैच में अगले 8 हफ्तों में एंटायर APSC का सिलेबस रिवाइज किया जाएगा. उस बैच को अगर आप ज्वाइन करते हो तो वो बैच foundation batch as well as prefit ka ecosystem you can purchase at just 6,999. Again, for further details you can contact on the number mentioned on your screen. ये जो अभी हम लोग एनालिसिस देख रहे हैं, you can download this PDF or even prefit questionnaire or any infographics from CSAP from the official app, and for that you need to scan the QR code. Let's start first. River Basin Management Scheme. Purpose is to strengthen the water governance. पहले तो समझते हैं what is it. This scheme is a scientific basin level framework for managing water resources holistically. Usually पुराने जमाने में सिर्फ river specific होता था, ये basin specific है. Basin में सिर्फ river नहीं आता. It takes into consideration total catchment area, छोटे-छोटे जो water sources है, छोटे-छोटे जो rivulets है जो धीरे-धीरे पानी river में लेकर आते हैं, इन सबको consider किया जाता है. एक landscape management की तरह होता है. Implementation agency जो है that is Central Ministry of Jal Shakti, and this scheme treats complete river system, entire river system. That means tributaries, groundwater, ecosystem as one hydrological unit instead of having multiple fragmented projects. Let's understand few data. कुछ facts देख लेते हैं. इसके लिए जो allocated money था, that has been increased to 2100 करोड़, लगभग 2200 करोड़ for next 5-year plan. इसकी इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी जो है वो है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी. देयर आर वो नेशनल वाटर डेवलपमेंट बोर्ड है, अथॉरिटी है. वैसे जस्ट रिमेंबर दिस इज एजेंसी एंड इट कम्स अंडर Ministry of Jal Shakti.
इसमें रिवर लिंकिंग के भी कुछ प्रोजेक्ट है जिसमें 30 प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई किए गए और उसमें से 26 की फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स कंप्लीट हो चुकी है। इस प्रोजेक्ट का स्कीम का एम है to ensure that there is an integrated water resource management to improve water security and climate resilience, and then balance irrigation, hydropower and ecology, all three aspects of hydrological unit. इसके कुछ की फीचर्स देखते हैं। एक, जो प्लानिंग होगी वो बेसिन लेवल पर होगी, like I mentioned। दूसरा, इसका जो अप्रोच होगा वो पूरी तरीके से साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल होगा, जिसमें हम जीआईएस सिस्टम, रिमोट सेंसिंग, लाइडर, ड्रोन सर्विस, इन सब का यूज करेंगे। अब इसका इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये जो हाइड्रोलॉजिकल मॉडलिंग है इसमें प्रिसीजन को इंप्रूव कर देता है, एकदम स्पेसिफिक इनपुट्स को इंप्रूव कर देता है। इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स का जो एस्पेक्ट है, जिसमें 30 प्रोजेक्ट्स आइडेंटिफाई कर दिए, 26 का फिजिबिलिटी रिपोर्ट सबमिट हो गया, वो किया जा रहा है नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के द्वारा, है ना, जिसमें सरप्लस रीजन्स है, जो डेफिसिट रीजन्स है, मतलब जो फ्लड प्रोन एरियाज है, जो ड्रॉट प्रोन एरियाज है, उनमें वाटर शिफ्ट किया जाएगा, ट्रांसफर किया जाएगा। नेक्स्ट एस्पेक्ट इज अबाउट फ्लड एंड इरोजन कंट्रोल। इसमें फोकस एरिया इज स्पेशली नॉर्थ ईस्ट रीजन, असम में मजूली आइलैंड। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज द अप्रोच इज गोइंग टू बी कम्युनिटी बेस्ड, पीपल पार्टिसिपेशन। कुछ लोकल जो कंजर्वेशन के प्रैक्टिसेस होते हैं इंडिजिनस, उनको प्रमोट किया जाएगा। तो व्हाई डू वी नीड सच स्कीम? वी नीड सच स्कीम बिकॉज क्लाइमेट चेंज की वजह से फ्लड्स, मॉनसून से अचानक इरेडिक हो गया, स्पॉन्टेनियस, हाईली फ्रीक्वेंट, एब्सेंस ऑफ एनी पैटर्न, इस तरीके से इरेडिक हो चुका है। We need it also because we face water scarcity। कल सीएनए में हमने देखा था कि इंडिया में वाटर का जो स्ट्रेस है, that is not because of lack of water, it is because of the lack of proper governance। तो ये वाटर स्कार्सिटी जो है, राइजिंग डिमांड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, सबको मैनेज करने के लिए we need a better scheme, and that's why this river basin management scheme plays critical role। Then there are issues which are not only interstate but also international, like इंडस हो, ब्रह्मपुत्र है, तीस्ता रिवर जैसी रिवर है। ये रिवर्स इंटरस्टेट के साथ साथ इंटरनेशनली भी इश्यूज क्रिएट करती है। देन अनदर एस्पेक्ट इज डिजास्टर मिटिगेशन, स्पेशली फ्लड्स, इरोजन, वाटर लॉगिंग, आल्सो ड्रॉट्स। इस स्कीम को आपको इम्प्लीमेंट करना है तो वी आर गोइंग टू फेस certain challenges। Some of them are like terrain बहुत difficult है, mountainous region है, नॉर्थ ईस्ट हो, जम्मू एंड कश्मीर हो, ये डिफिकल्ट टेरेन है। सेकंड चैलेंज इज इंटरस्टेट डिस्प्यूट। अगर वाटर मैनेजमेंट के पर्सपेक्टिव से किसी स्टेट में आप प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट अदर स्टेट माइट टेक इट एज अ थ्रेट। उनको लगेगा कि हमारा वाटर सर्कुलेशन डिस्टर्ब होगा, हमारा वाटर साइकिल डिस्टर्ब होगा। थर्ड इज डेटा गैप्स। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जो डेटा अवेलेबल है, वो कई बार डिलेड डेटा होता है, या अगर टाइम पे भी आता है तो कई बार वो इनएक्यूरेट डेटा होता है, तो इट क्रिएट्स डेटा गैप्स। वी ऑल्सो हैव सम इकोलॉजिकल कंसर्न्स। प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो भी बहुत बढ़ जाती है, बहुत हाई कॉस्ट ऑलरेडी, मतलब हेवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है इन जैसे स्कीम्स में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए। But nonetheless, if we implement this scheme successfully, we would be assuring water security, we would be reducing the disaster, we will be maintaining balance at ecological level, and this will also give a strategic higher point, strategic importance, especially around border areas. So let's start with first MCQ. The RBM scheme, that is River Basin Management Scheme, is based on which approach? Project based,
basin level, state level, village level. Answer is basin level. Second MCQ, the river interlinking component under river basin management scheme primarily handled by NWDA, National Water Development Agency, Ministry of Jal Shakti. Let's move to the next article. Next article argues why women reservation cannot wait, which just got defeated. But as of now, ये article के perspective से हम पढ़ेंगे. Article debates the debates around women reservation. It centers on immediate implementation of women's reservation in legislature. इसमें core issue क्या है? जो core issue is high political participation versus low political representation. Meaning विमेन जो है वो पॉलिटिकल एक्टिविटी में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट करती है, लेकिन जब रिप्रेजेंटेशन की बात आती है तो वो जितना उनका पार्टिसिपेशन है उसके प्रोपोर्शनेट उनका रिप्रेजेंटेशन लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबलीज में नहीं है. जब वोटिंग की बात आती है तो कई बार विमेन वोट इक्वली और इवन मोर देन मेन, बट व्हेन इट कम्स टू रिप्रेजेंटेशन दे आर अंडर रिप्रेजेंटेड. तो कुछ पहले डेटा देख लेते हैं. पार्लियामेंट रिप्रेजेंटेशन में अभी एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट में लगभग 15% विमेन है. जो स्टेट असेंबलीज है वो लगभग 9% ही विमेन एमएलएज है, लेकिन पॉपुलेशन में 50% विमेन है. तो आप देखिए कि कितना कम रिप्रेजेंटेशन है उनको. देयर इज क्लियर कट रिप्रेजेंटेशन गैप फॉर विमेन. कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या कहता है? जो 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसकी प्रोविजन थी कि 33% रिजर्वेशन विल बी गिवन फॉर वीमेन इन लोकसभा, इन स्टेट असेंबलीज एंड इन दिल्ली असेंबलीज. एक और यूटी का बिल है जो पेंडिंग है, जिसके साथ ऐसे जो यूनियन टेरिटरीज है जहां पर लेजिस्लेचर प्रेजेंट है पर इसको एक्सटेंड किया जाएगा. इस 33% में एससी एंड एसटी वुमेन के लिए सब कोटा भी होगा और ये रिजर्वेशन 15 साल के लिए दिया जाएगा, लेकिन ये एक्सटेंडेबल है, मतलब इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हो. अब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में आप देखेंगे तो इट विल आल्सो ऐड टू द रोटेशन ऑफ सीट्स, और इसके इम्प्लीमेंटेशन कंडीशन ये है कि दिस विल बी इम्प्लीमेंटेड ओनली आफ्टर द डिलिमिटेशन बेस्ड ऑन पोस्ट 2023 सेंसस. मतलब 2026 का जो सेंसस है जो अब हो रहा है उसका डेटा आने के बाद डेलिमिटेशन बनाया जाएगा एंड उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा. ये जो सेंसस के साथ जो लिंक किया गया इट इज द कोर फैक्टर फॉर डिलेइंग. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई इट कैन नॉट वेट. फर्स्ट, स्ट्रक्चरल एक्सक्लूजन. पॉलिटिक्स जो है दिट इज ड्रिवन बाय द नेटवर्क्स, मनी, सोशल कैपिटल, एंड अगर इनको कोटा नहीं दिया गया जल्दी तो women will be systematically excluded from this system. We also need to think about democratic legitimacy, because any democracy is only good function if it reflects its population. लेकिन अगर आपका 50% women population है और legislature में आपके 9 से 12% ही लोग पहुंच रहे हैं, तो that means it's not giving the representation to the population. That means this is under-representation, and this under-representation weakens the idea of inclusiveness and trust in the democracy. Why it cannot wait? Because local bodies में success proven है. जो पंचायती राज institutions है, urban as well as rural, इन दोनों में it has shown the result, it has shown the positive effect. So since we have successfully demonstrated at grassroots level, it's very high time that we should implement it at the higher level as well. When women are chosen, they focus more better on health, education and on water. Then what we know is a role model effect. जो women leaders है, they act as a better role model. They break the stereotypes. They inspire the future participation of women. Then there is element of rising aspiration.
there is increasing education amongst women, there is increasing workforce participation amongst women, so they have higher aspirations of getting better representation. So such delay creates systematic frustration among women. Challenges of delay, there will be a loss of generational opportunity, क्योंकि डेलिब्रेशन जितना लेट होगा तो वो 2019 की 2009 के इलेक्शंस में भी इसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे. देन देयर विल बी कंटिन्यूड मेल गेटकीपिंग, मतलब मेल पार्टीज will prefer male candidate, they will prefer giving tickets only to the male, they will be reluctant to provide to the females. Then there will be policy blind spots, gender issues जो है वो अंडर रिप्रेजेंटेड है क्योंकि जेंडर ही इक्वली रिप्रेजेंटेड नहीं है डिस्कशन में. देयर विल बी डेमोक्रेटिक डेफिसिट, क्योंकि पार्टिसिपेशन अगर रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट ना हो तो वो डेमोक्रेसी की लार्जर आइडिया की हार है. जो करंट फ्रेमवर्क है उसमें की इश्यूज क्या है. फर्स्ट, एक आपने तो पहले तो इसको सेंसस के साथ लिंक करके रखा है. जब तक सेंसस ना हो तब तक डिलिमिटेशन कमीशन नहीं आएगा, जब तक डिलिमिटेशन कमीशन नहीं आएगा तब तक 33% वाला जो रिजर्वेशन है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा. तो ये तो इंडेफिनिट डिले कॉज करेगा. दूसरा, पॉलिटिकल हेजिटेशन. एक तो इस आइडिया के बारे में कंसेंसस मतलब एक मतता सारे पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं है. फिर जो सीट्स है उसके रीडिस्ट्रीब्यूशन का भी फियर है अमंग पॉलिटिकल पार्टीज. So how are we going to move forward? First and foremost, immediately delink this reservation from the conduction of census. फिर पार्टी लेवल पे टिकट्स के लिए कोटा अप्लाई कर दो. जो विमेन लीडरशिप पाइपलाइंस है जैसे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है, वहां पे विमेन लीडरशिप को स्ट्रेंथन करो. फिर विमेन्स को फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड करो एंड बिल्ड द पब्लिक कंसेंसस. लोगों के बीच में ये जाना चाहिए कि विमेन लीडरशिप इज अ गुड लीडरशिप फॉर द कंट्री. फर्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं. 106th Constitutional Amendment Act provides for B, 33% reservation for women. Next MCQ. The major bottleneck in implementing women reservation is the census and linkage delimitation. Since we are discussing about women, ऊपर जो अमेंडमेंट मिलता है तो क्विकली हम इसको कॉन्स्टिट्यूशनल 131st अमेंडमेंट एक्ट को भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं. This has been failed, but समझते हैं क्या था. It was introduced under Article 368, that is Constitutional Amendment Bill. It enables Parliament to modify constitutional provisions subject to strict safeguards to protect the basic structure. इस बिल में आर्टिकल 81 इन्वॉल्व था जिसमें स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा है जो 443 से बढ़ाकर लगभग 800 के आसपास लेकर जानी थी. देन आर्टिकल 82 है जिसमें रीएडजस्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात होती है. अब जो प्रोसीजर फॉलो करनी थी इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए वो थी स्पेशल मेजोरिटी की. मतलब स्पेशल मेजोरिटी से इसको पास करना था लोकसभा में, मीनिंग मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप प्लस 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग. दूसरा इसमें क्लॉज होता है कि इसमें ज्वाइंट सिटिंग हो नहीं सकती है ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में देयर कैन नॉट बी ए ज्वाइंट सिटिंग. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में सेपरेटली ही पास होना चाहिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों में. इसमें स्टेट रैटिफिकेशन जरूरत था क्योंकि फेडरल प्रोविजंस इफेक्ट हो रही है तो एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर नीड टू अप्रूव दिस. अब इसके फीचर्स थे कि 543 जो सीट्स है उससे बढ़ाकर 850 कर रहे थे लोकसभा में. डिलिमिटेशन रिफॉर्म थे, मतलब यूज ऑफ 2011 का सेंसस यूज करना था एंड ये इसलिए कर रहे थे क्योंकि जो पहला वाला था जिसमें
2026 का जो सेंसस है उसके ऊपर डिपेंडेंट होना था डिलिमिटेशन, लेकिन वो अभी तक हुआ नहीं, तो ये डिले हो जाता। तो इन ऑर्डर टू अवॉइड द डिले फॉर द इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने ये कहा था कि 2011 का सेंसस यूज करेंगे। विमेन रिजर्वेशन पोस्ट भाई 33% कोटा का इमीडिएटली इम्प्लीमेंटेशन हो जाता। आइडिया ये था इंट्रोड्यूस करने के पीछे कि दे वांटेड टू एनेबल अर्ली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द विमेन रिजर्वेशन 106th अमेंडमेंट एक्ट टू रिफ्लेक्ट द डेमोग्राफिक चेंजेस, क्योंकि जब सीट्स बढ़ जाएंगे, डिलिमिटेशन नया से होगा, तो जो नया सेंसस होगा, जो पॉपुलेशन रियलिटी उसको रिफ्लेक्ट करेंगे टू रिफॉर्म द डिलिमिटेशन प्रोसेस। तो व्हाई डिड इट फेल? क्योंकि बिल में जो लोगों ने यह मतलब जो इस फेवर में थे, जिनका वोट यस था वो था 298 और जो अगेंस्ट थे वो था वोट 230। जो मेजोरिटी चाहिए थी, स्पेशल मेजोरिटी, वो इट वाज 2/3, दैट मींस उनको 352 वोट्स चाहिए थे, व्हिच दे फेल्ड। पॉलिटिकल ऑपोजिशन किस लिए था? बिकॉज दे हैड कंसर्न्स ओवर डिलिमिटेशन इम्पैक्ट, फेडरल इम्बैलेंस एंड नॉर्थ साउथ रिप्रेजेंटेशन में शिफ्ट आ जाएगा इसके वजह से। देयर वर सर्टेन कंसर्न्स रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर आल्सो, क्योंकि they were arguing that linking reservation with delimitation was seen as politically sensitive or constitutionally contentious. अब implication क्या होगा कि भाई women reservation delay हो गया, it will be dependent on post 2026 census now, तो 2019 से पहले तो ये होगा ही नहीं implement, तो status quo जो है, जो अभी situation है वही continue रहेगी, 543 सीट्स के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा। फेडरल बैलेंस जो है अभी के लिए प्रिजर्व हो गया है। Anyways, so what is the way forward? The government has to build larger, broad political consensus. Government has to consider delinking reservation from delimitation. जो पार्लियामेंट्री कमेटी है उसको ये रिफॉर्म्स को रेफर करना होगा, एंड जो फेडरल डायलॉग है उसको ट्रांसपेरेंट, उसमें ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करना पड़ेगा। First MCQ, constitutional amendment bill requires which majority? Obviously the special majority, that is 2/3 voting. Joint sitting is allowed in case of deadlock for constitutional amendment bill. Is it true or false? The answer is false. It is not allowed. Let's jump to the final article. ये जो आर्टिकल है, फाइनल आर्टिकल, इसको हम बहुत क्विकली गो थ्रू करेंगे। रीजन इज इस स्कीम के बारे में बस जानना है। ये रिलीफ स्कीम जो है, इट स्टैंड्स फॉर रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिकल इंटरवेंशन और एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। This scheme is a time-bound export support initiative to protect Indian exporters from geopolitical disruptions. जो अभी मिडिल ईस्ट में हो रहा है, ईरान इजराइल वॉर के वजह से जो डिसरप्शन हुआ है, उस सिचुएशन में जो एक्सपोर्टर्स है उनके एक्सपोर्ट पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, तो उनका बिजनेस बचाने के लिए, उसके एक्सपोर्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया है ये स्कीम। It is launched under Export Promotion Mission 2026. It will act as a financial safety net during crisis period. Purpose obviously क्या होगा? जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स है उनका कैंसिलेशन को प्रिवेंट करना, जो एमएसएमई एक्सपोर्टर्स है उनको प्रोटेक्ट करना, और जो एक्स्ट्रा वॉर की वजह से जो डीजल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गई, तो ये जो एक्स्ट्रा लॉजिस्टिक और इंश्योरेंस का प्राइस है उसको ऑफसेट कर देना थ्रू दिस स्कीम, सो दैट ये इसका हानि जो है वो एक्सपोर्टर्स को ना हो, और इस तरीके से इंडिया का एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को मेंटेन रखना। It covers, initially it focused on the West Asia, but now it has been expanded to include the countries like Egypt and Jordan, जहाँ वहाँ के भी एक्सपोर्ट को कवर कर रहा है। It also covers the key trade routes, including regions around the Strait of Hormuz, not just the destination but also the route it takes. Financial outlay is approximately 500 crore। इसमें 3 component structure है, मतलब पहला component जो है वो enhanced cover है, मतलब जो existing policy holders है उनको up to 100% risk coverage दे दिया है,
एंड जो प्रीमियम है दैट इज फ्रोजन एट द प्री क्राइसिस लेवल. ये क्राइसिस शुरू होने से पहले जो इंश्योरेंस का प्रीमियम था वही पे इसको फ्रीज कर दिया. सेकेंड इंपॉर्टेंट फीचर इज जो सेकेंड कंपोनेंट है उसमें 95% रिस्क कवरेज है. एंड थर्ड जो है एमएसएमई सपोर्ट के लिए उसमें जो नॉन इंश्योर्ड एक्सपोर्टर्स है उनको सपोर्ट करने के लिए 50% रिइंबर्समेंट और फ्रेट सरचार्जेस एंड वॉर रिस्क इंश्योरेंस. Obviously, this is going to provide us a trade stability. It is going to give MSME protection and generate security or provide security for the employment. Strategic trade continuity रहेगा. So, what is the way forward? एक तो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को एक्सपांड करना होगा among स्पेशली एक्सपोर्टर्स. लॉन्ग टर्म लॉजिस्टिकल रेजिलियंस की स्ट्रेटेजीज को बिल्डअप करना होगा. जो ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन है कंट्री का उसको स्ट्रेंथन करना होगा. एंड रियल टाइम सपोर्ट सिस्टम फॉर द एक्सपोर्टर्स को इम्प्रूव करना होगा. फर्स्ट एमसीक्यू, रिलीफ स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड बाय. द आंसर इज ECGC. The relief scheme, MSME can get reimbursement up to 50%. ये APSC और UPSC के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन स्मार्ट बुक्स है. These are now available in Assamese script as well. ये प्रीफिट और APSC का क्रैश कोर्स अब combined to price 6,999 है. You can purchase both this combined product at 6,999. ये इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसमें अगर आप 120 प्लस स्कोर करना चाहते हो APSC प्रीलिम्स में तो यू कैन ज्वाइन दिस PYQs एनालिसिस प्रोग्राम. ये सिर्फ 1,000 रुपीज में होगा. ये राजदीप लिखा सब खुद लेंगे. सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे. सी यू अगेन टुमारो.